انشاءاللہ پاکستان کے بہترین اشخاص جنہوں نے بہترین سروسز دیں، کراچی سے آپ لوگ واقف ہیں، اور میں کراچی کو بہت زیادہ تو نہیں جانتی، مگر کراچی کا ایک علاقہ، ون آف مائی سسٹر، ایلڈر سسٹر واز دیئر کراچی میں PCSIR. اب تو میرا خیال ہے آبادی اتنی تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیر واز اے ٹائم کہ جو PCSIR کا علاقہ تھا، یونیورسٹی، کراچی یونیورسٹی، اور کراچی یونیورسٹی کے بعد PCSIR کا علاقہ آیا کرتا ہوتا تھا. مگر اب تو پاکستان میں ایٹم بام ہے سب سے بڑا اس وقت جو آبادی کا بڑھنا ہے. اتنی تیزی سے آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے اب تو وہ جگہ بھی بستی کے اندر ہی آ گئی ہوگی. ایک زمانہ تھا بالکل دور دراز جنگلوں میں یہ PCSIR کی کالونی اور لیبس جو تھیں، لیبارٹریز تھیں. I have a wonderful guest here. بیگم صاحبہ اور ان کے ہسبینڈ دونوں یہاں پر موجود ہیں. جناب دبیر احمد صاحب، پاکستان جو سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ تھا PCSIR، اس میں آپ فزکس کے ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کام کیا. ان کی بیگم صاحبہ محترمہ عشرت دبیر صاحبہ بھی یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. دبیر بھائی، سب سے پہلے تو آئی تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. تھینک یو. آپ کا اتنا شکریہ کہ ادھر سے دیکھتے تھے، اب اس طرف سے دیکھیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے PCSIR کو کب جوائن کیا تھا، اور اس ادارے میں باقاعدہ جو جب ہائرنگ بھی ہوا کرتی ہوتی تھی، میرٹ کے اوپر ہوا کرتی ہوتی تھی، آپ نے جب جوائن کیا تھا، جب آپ نے چھوڑا، تو کیسے کمپیئر کریں گے زمانوں میں اور PCSIR کی کارکردگی کو؟ ہاں، ہمارے سب سے پہلے ڈائریکٹر اور چیئرمین جو تھے سلیم الزماں صدیقی صاحب تھے جی، اور لکھنؤ سے چونکہ تعلق تھا، بڑے نستعلیق آدمی تھے. کبھی انہوں نے چیئرمین ہوتے ہوئے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ان کے سبارڈینیٹس ہیں، ہمیشہ برابری کا تھا. تو ایک ہماری خصوصیت جو میں دوسرے اداروں سے مقابلہ کرتا ہوں تو یہ پتہ چلتی کہ ہمیں کبھی آفیسری اور ماتحتی کا تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی یہ نہیں بتاتا تھا کہ یہ میرے انڈر میں ہے، سب کولیگ تھے. تو ایک تو یہ فرق میں نے دیکھا جو بہت ہی کم کہیں ہوتا ہوگا، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ خواتین کے بارے میں بڑا ہی رسپیکٹفل تھا. تو ہمارے یہاں جو ساتھی ہمارے کام کرتے تھے وہ ہمیشہ بہنوں کی طرح اور بیٹیوں کی طرح ہوتے تھے. تو ایک تو یہ کہ جو اب کہیں نظر نہیں آتا، تو اب وہاں بھی نظر نہیں آتا کہ اوور دی ایئرس، تھوڑا سا مائک کے قریب آ جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. جی، اوور دی ایئرس اب یہ بات نظر نہیں آتی. اب وہ آ گیا پرناس جس کو کہتے ہیں کہ میرا گریڈ زیادہ ہے اور اس کا کم ہے. اچھا، اور اس وقت ہم نے محنت کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اسی سے کامیابی ہے. اب پتہ نہیں کیا فارمولہ ہے، مجھ کو پتہ نہیں. یہ پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ، جس میں جو سندھ کے جتنے باغات تھے، کراچی میں بھی یہ ڈپارٹمنٹ، پھر یہ لاہور میں بھی، پھر اسپارکو کا ادارہ بھی اس کے ساتھ آگے آ کے شروع ہو گیا. تو جس میں کمرشل اسکیل کے اوپر جتنے باغ ہوا کرتے ہوتے تھے، آموں کے باغ، بعضوں کا درختوں کے بیچ میں جو بگز کا بیٹھ جانا، ان کا علاج کرنا، تو یہ انڈسٹریل ریسرچ میں اس ادارے نے. جی، اصل میں ہمارا یہ بتا دوں میں کہ ہمارے جو لیبارٹری تھی اس کے چند ایک سیکشنز تھے، بلکہ ڈویژنز تھے، اور اس میں سے جو ہمارا ایگریکلچر کا ڈویژن تھا جو آپ فرما رہی ہیں، اس کا ذمہ داری یہ تھی کہ تمام جو ایگریکلچر وہ ہے اس کے اوپر وہ مدد کریں اور کوئی نئی بات ہے تو بتائی جائے. اور ہم لوگ جو تھے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ اور بایولوجی کا ڈپارٹمنٹ، جس کی یہ برانچ تھی، فزکس کا الگ ڈپارٹمنٹ تھا، انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ الگ تھا، کیمیکل انجینئر. تو ہر شعبے کو اس کے حساب سے ذمہ داریاں تھیں. تو جس کو بھی مدد کرنا ہوتی تھی، اور پیور ریسرچ بھی ہوتی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہے، کہ مگر وہ اب اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہے کہ
सोचना पड़ता है। बड़ा अजीब सा एक सवाल करने लगी हूँ। पाकिस्तान में देयर वाज अ टाइम स्टील मिल्स बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जिसने दुनिया में लीड किया, मगर फिर उसके बाद सिफारशी भर्तियां जब शुरू हुई तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन डिक्लाइन गया। पाकिस्तान स्टील मिल जो है डिक्लाइन की तरफ गई। सेम थिंग तो रेलवे। PCSIR की अगर मैं बात करती हूँ, देयर वाज अ टाइम के क्वालिफिकेशंस जो क्राइटेरिया था वो आपकी हर शोबे के मुताबिक था, मगर जब सिफारशी भर्तियाँ गवर्नमेंट इदारों में शुरू हुई तो क्या PCSIR में भी आप समझते हैं कि सिफारशी भर्तियाँ हुई? क्योंकि आपने तो जी वक्त गुजारा। मैंने 61 में ज्वाइन किया था इसका। मैंने मास्टर किया कराची यूनिवर्सिटी से 61 में मैंने ज्वाइन किया सितंबर में। तो मैंने ये देखा कि ऐसी बात इक्का दुक्का तो हो जाती है, क्योंकि इसको तो नहीं कहें कि न होती, मगर होते थे इंटरव्यू ठीक ठाक और एक से ज़्यादा लोग इंटरव्यू लेते थे, पर चीज़ ज़रा कम ही चलती थी उस वक्त। फिर बाद में तो सिर्फ टेलीफोन से ही नौकरियां मिलने लगी थी। तो अब इसको क्या कहा जा सकता, मगर दिल कुड़ता तो होगा। आप देखिए, मगर डिक्लाइन में गया, स्टील मिल डिक्लाइन में गई और हत्ता कि वो सर की दर्द बन गई। सेम वे पाकिस्तान इंटरनेशनल डिक्लाइन। आज भी आप देखिए कनाडा से हर रोज़ तकरीबन एक फ़्लाइट जाती है, मगर बड़ी शर्म के साथ ये कहना पड़ता है कि PIA लॉस में, इवन कनाडा से लॉस में है। क्या हो सकता है कि सबसे महंगी टिकट जो है वो PIA की है, एवरीडे फ्लाइट जाती है। एंड आई एम वेरी सैड टू अनाउंस दिस कि भी इत्तेहाद एयरवेज है, इत्तेहाद एयरवेज को बनाने वाले नहीं जी, इत्तेहाद एयरवेज जो है अब उसकी 5 दिन की फ़्लाइट शुरू होने लगी है। वो प्रॉफिट में जा रही है, मेरी अपनी PIA जो है लॉस में जा रही है। जितने आपके कंट्री मैनेजर्स आते हैं, जितनी इन पोजीशंस पे ओवरसीज अपॉइंटमेंट्स होती हैं, डेपुटेशन पे जो लोग जाते हैं, दे आर ऑल ऑन सिफारिशी और भर्ती के ऊपर। PIA तो खोखली हो चुकी है ना, उसके अंदर तो कुछ रहा ही नहीं है। गवर्नमेंट के इदारे ना, तो यही मेरा कंसर्न है कि PCSIR के साथ डू यू थिंक कि PCSIR ने भी कोई इस तरह के लॉसेस देना शुरू किए जिसमें पॉलिटिकल सिफारशी भर्तियां या आर्मी के ऑफिसर्स रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके लगे? हाँ, इक्का दुक्का तो ज़रूर लगे, मगर अच्छा फौजी भी आके लगे? हाँ, अच्छा फौजी जनरल्स अपने इदारे से रिटायर हो गए, वो इसमें सेक्रेटरी लगे और लगे, मगर असल में ये कुछ शोबा ऐसा था कि इसमें ज़्यादा गुंजाइश थी नहीं, कमाने की नहीं थी ना, तो इस वजह से इंटरेस्टेड नहीं होते थे। ये आते हैं तो भाग जाते थे। तो अक्सर लोग बात करी ना आपने इशरत बहन, आपने बल्कि ज़्यादा अच्छी बात की कि ऊपर की आमदन इसमें नहीं, मगर नहीं जी, ऊपर की आमदन का चांस तो है इसमें भी, बिकॉज जितना मुझे PCSIR के बारे में मैं देख रही थी, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1953 में एस्टैब्लिश हुई थी। मगर यहाँ पर भी जो बागात के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो आपके साइंटिस्ट जब रिसर्च के लिए जाते हैं या स्प्रेस के लिए जाते हैं तो वो उनसे पैसा लेते हैं, मगर उनका काम बहुत आगे नहीं बढ़ सकता ना। हाँ, इसलिए कि उनको अप्रूवल नहीं मिलता। जबीर साहब ने एक एक्सरे मशीन बनाई थी जी, उस अच्छा आपकी इन्वेंशन थी वो? जी, इन्वेंशन ये उनका प्रोजेक्ट था जी हाँ, इन दैट सर्विस। वो एक्सरे मशीन उस वक्त बाजार में 70 अबाउट दैट, हाँ 75,000 की लिया करते थे लोग, एंड द टीम प्रिपेयर दैट इन 25,000। तो PCSIR में अंदर तैयार की गई। तो अब आप समझे कि कैसे दौड़ के इसको पैटर्नाइज करना चाहिए था, लेकिन PCSIR को बड़ी इंट्रोड्यूस करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बट नॉट अप्रूव्ड। बस एक दफ़ा इतना हुआ कि ये मशीन लेकर गए और इन्होंने जाके आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में उसको इंस्टॉल किया, बस इस हद तक तो मिला, इसके आगे
कोई काम नहीं। और भी बहुत सारे काम इस सोच में रहते हुए साइंटिफिक रिसर्च में किधर से काम आगे बढ़े। इसका मतलब है कि अगर एक इन्वेंशन हुई भी तो उसको पेटेंट नहीं कराया गया। हर डिवीजन, हर इदारे में काफी अच्छा, इसमें पेटेंट ना कराने की एक वजह ये थी कि अगर वो 75,000 की बाहर से लेते थे, क्योंकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट इदारों में जब बाहर से चीज़ें खरीदी जाती थी तो 10% 20% अपना कमीशन रखा जाता था। तो अगर आपकी वो 25,000 की मशीन को पेटेंट PCSR करा लेता तो फिर तो नुकसान था ना उन लोगों का जिन्होंने खरीदना थी। जो इम्पोर्ट कर रहे हैं इतने लोगों का बिजनेस खत्म हो जाती, इतने लोगों के तो ये तो एक मैंने एग्जांपल दी। इसी तरह आप हर इदारे में सोचें कि हो रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, तो दोनों तरफ से मुसीबत है। एक तो इंडस्ट्रियल जो है वो नहीं चाहता कि कोई ऐसा हो कि जो बाहर जो से मंगाए या उस पर जो किकबैक है या जो इनको कमीशन मिलता है, हमारे यहाँ सूखा सूखा ना हम खाएं ना खाने दें। तो नहीं, अभी आपकी इस बात पे मुझे हैरत है, आपने कहा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चाहता, तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो बल्कि नहीं चाहेगा कि मैं 75,000 की बाहर से मंगवाऊं। ही विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय समथिंग फॉर 25,000 रादर देन स्पेंडिंग 75,000। तो अब यहाँ दरमियान में रुकावट कौन था? ऐसा है कि इंडस्ट्री में है मसला। एक तो उनको जो बाहर से मंगाते हैं तो उनको इंसेंटिव होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज में भी उनको पैसे मिल जाते हैं, जिसको क्या कहते थे एक ज़माने में किकबैक तो एक ऐसा ही हुआ जो गवर्नमेंट उनको मराद देती कि तुमने इतना इंसेंटिव एग्जैक्टली। तो बनिया तो हिसाब लगाता है ना अपना, उसको इससे मतलब नहीं कि ये हमारी के लिए क्या है, उसको तो 2 पैसे अपना कमाना है, तो उसने तो अपना करना है। तो बहरहाल इसी तरह हमारे प्लास्टिक एंड पॉलीमर्स डिवीजन ने पेंट्स तैयार किए। अच्छा, पेंट्स आपने अपनी लैब में तैयार? जी हाँ, हमारी जो डिवीजन इसका पेंट्स एंड प्लास्टिक का था उसने तैयार किए, बड़े अच्छे पेंट्स बनाए। अच्छा, मसला ये होता था कि जब आप कंपटीशन में आप बाज़ार में जाते हैं तो फिर आपका कोई सामान लेता नहीं। क्यों? वो वही कि उनका मुनाफा जो उनका ऊपर नीचे करके जो मुनाफा होता वो उतना नहीं मिलता था। तो फिर एक साइकिल है ना मुनाफे का, बहुत सारी स्टेजेस में वो सब इन्वॉल्व हो रहा है। फिर ऐसा हुआ कि हाँ, हमारी तरफ से भी एक स्ट्रेटजी पे मूव की गई कि हमने स्टेटेक बनाया, साइंस एंड टेक्निकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टीडक। तो उसने ये किया कि हमारी चीज़ों को बनवाना शुरू किया और मार्केटिंग करना शुरू किया, कि हमने जो काम नहीं किया वो मार्केटिंग का नहीं किया, क्योंकि इन्वेंट करना बनाना एक अलग है और मार्केट करना एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर हमारी जो थी मार खाई कि हमको मार्केटिंग का तजुर्बा नहीं था। तो चंदे प्रोडक्ट लेकर जब वो हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी, जब वो मार्केट में लेकर आई तो काम चला कि बिल्कुल। तो आपका ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट था, आप रिसर्च करते थे, आपने इन्वेंशंस की, मगर आपने मार्केट हमको एक ही काम आता था, हम मार्केट तो नहीं कर सकते थे, उसके लिए प्रोफेशन चाहिए। तो वो मैनेजमेंटल लेवल का फ्लॉ। अच्छा, तो हाँ जी हाँ, तो ये हमारी हायर्स को चाहिए था या जो प्लानर था उनको चाहिए था कि अगर एक चीज़ बन रही है तो उसको खपत के लिए भी या बेचने के लिए भी प्रोफेशंस चाहिए। तो साइंटिस्ट इन शॉर्ट गवर्नमेंट के ये जो इदारे हैं, आई थिंक सो, जो मुझे आपकी बात से समझ आया है कि गवर्नमेंट के इदारों में वक्त का ज़िया तो है, इन्वेंशंस भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनको फिर पब्लिसाइज नहीं किया जाता, उनको प्रमोट नहीं किया जाता, उनको मार्केट नहीं किया जाता। तनख्वाहें भी दे रहे हैं आप, मगर अपने परसेंटेज के लालच में पाकिस्तान के इदारे खसारे का शिकार। तो एक तरह से आप ये समझिए कि जिसको एक छतरी के नीचे होना चाहिए था इन सब चीज़ों को, वो अलग अलग हो गए और कोऑर्डिनेशन कोई नहीं। तो ये तो होगा कि यानी टीम वर्क का फुकदान। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसे प्रोडक्शन और इन्वेंशन से लेकर मार्केट तक एक
अम्ब्रेला के अंदर होना चाहिए था, चैनल नहीं बना। तो ये बहरहाल तो अब तो साहब PCSR के बारे में, द गवर्निंग बॉडी इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द काउंसिल एंड कंप्राइजेस ऑफ द चेयरमैन एंड 3 फुल टाइम मेंबर्स वर्सेस साइंस मेंबर्स जो साइंटिस्ट्स हैं एंड टेक्नोलॉजी के लोग हैं। मगर वही फुकदान कहाँ पे हुआ कि वो कहते ना ज़रा नम हो तो बड़ी रफेज है ये मट्टी है सही, बट अनफॉर्चुनेटली जो ऊपर गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं बाज़ औक़ात वो अपने परसेंटेज की खातर पूरे के पूरे इदारों को ज़मीन बोस कर दिया करते हैं। दिस इज़ पाकिस्तान का मियाँ सिर्फ इतना है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने पाकिस्तान को कब छोड़ा? हम 2000 में आ गए। आपने 2000, आप अमेरिका में रहते हैं? अमेरिका किस जगह पे? बॉस्टन। अच्छा, आप बॉस्टन में से, आप बेटे वहाँ सेटल? जी हाँ, और दरअसल पोती की वजह से आ गए, बेटे से तो इतनी न थी। जब पोती हुई तो हमने कहा कि अब बेकार है यार पाकिस्तान में रहना अब चलो। वो किसी ने कहा ना असल दर से सूद तो ज़्यादा जब सूद लेने आए हम और फंस गए। वो हमारी बहू भी फुल टाइम वर्कर थी, तो फिर हमने कहा कि बच्चे जो हैं डे केयर में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान में फुल टाइम PCSR के साथ काम किया, तो शुद्ध आपने सिर्फ हाउस वाइफ थी या आपने क्या किया? नहीं, आई वाज नेवर हाउस वाइफ। मैंने टीचिंग में वक्त अपना सर्व किया। अच्छा, आप पढ़ाती थी? जी, 25 साल मैंने गवर्नमेंट की सर्विस की है। आई वाज ए हाई स्कूल टीचर। अच्छा, आपके स्टूडेंट्स जो हैं अब जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं? जी, फेसबुक का अल्लाह भला करे, काफ़ी लोग कांटेक्ट में आ गए हैं। काफ़ी लोग कांटेक्ट में आ गए हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप बॉस्टन में हैं और PCSR का वो इदारा जिसके अच्छे दिन भी गुजरे। When you compare वो ज़माना 53 में PCSR बनता है, 61 में 7 साल के बाद आपने ज्वाइन किया, 2000 में आपने पाकिस्तान को छोड़ा, तो इफ़ यू सी तो आप PCSR को डिक्लाइन में जाते हुए देखते हैं। देखिए जी, अबुल कलाम हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट बन गए, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो किया बड़ा गदर किया, पाकिस्तान में डॉक्टर कदीर खान के साथ जो किया बड़ा गदर किया। आप क्या समझते हैं कि क्या पॉलिटिशियन जस्टिफाई कर सका उन रिसर्चर्स को, उन साइंटिस्ट्स को जिन्होंने जो कुछ कर सकते थे और आगे अपने? अगर एक जुमले में कहें हम तो हम लोग सख्त एहसान फरामोश लोग हैं कि एहसान मानने वाले नहीं हैं। अबुल कलाम एक और भी है जो इंडिया में प्रेसिडेंट बने, मैं उन्हीं की बात कर रही। तो एक तो वो गुजरे जिन्होंने इसको शुरू से नापसंद किया था, पाकिस्तान के क़याम को नापसंद किया था। एक तो वो थे ना, तो अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, आज़ाद साहब, तो उन्होंने तो आज़ाद कर दिया। अब यही देखिए कि ये और भी बहुत सारे लोग हैं मगर नहीं, मैं जो कंपैरिजन करना चाह रही थी कि हिंदुस्तान ने अपने साइंटिस्ट को एक्नॉलेज किया। एग्जैक्टली। मुसलमान भी वो और अबुल कलाम, और उनको पोजीशन भी बड़ी अच्छी दी गई। वेयर एज इन पाकिस्तान आप अपने इदारे को देखते हैं तो आप उसमें कितना टूट फूट का अमल देखते हैं? डू यू थिंक कि जो ये इदारा है, जो इसकी कैपेसिटी है, जो इसको करना चाहिए, क्या वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? और अगर वो नहीं कर पा रहा तो कौन मुर्द इल्ज़ाम? तो मैं, चलिए याद आ गया मुझको, इतनी पुरानी बातें हैं तो याद आ गई। लियाकत अली ने ख़त लिखा था और हमारे चेयरमैन सलीमुज़्ज़मा साहब दिल्ली में थे, इंडियन CSR में, तो उन्होंने नेहरू को वो ख़त दिखाया कि यहाँ हमको पाकिस्तान में बुलाया गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे मुल्क को ज़रूरत है। 53 में वो आए वहाँ से और इसको कायम किया। एक नेवल हॉस्पिटल की बैरक्स होती थी, उसमें इंडियन CSIR जो है वो उसके इंचार्ज आते हैं, और PCSR तो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक। खास रिक्वेस्ट पे मैं, जो आगे आएगी बात तो आप उससे अंदाज़ा लगे मैं क्यों इनको एहसान फरामोश कह रहा हूँ। तो हुआ ये कि
جب ہوا تو وہ ظاہر ہے کہ اس پوسٹ پہ تھے تو ان کو پرائم منسٹر کو بتانا تھا. تو انہوں نے جب کہا تو نہرو نے اتنے بڑے دل سے کہا کہ ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو تو تمہارے ملک ہے تم چلے جاؤ. وہ آئے اس سے انہوں نے آرگنائز کیا, سب کچھ کیا. اور جناب یہ ہے واقعہ میرے خیال سے 63 یا 4 میں ایک دم سے پتہ چلا کہ ایک جنرل صاحب آئے ہیں, انہوں نے چارج دینا ہے پی سی صاحب کا. جی تو یعنی 53 میں وہ انڈیا سے پاکستان آتے ہیں, پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک ریسرچ بناتے ہیں, اور 10 سال کے بعد ایک جنرل صاحب آتے ہیں, ان کو نکالتے ہیں اور ان کی جگہ پہ آ جاتے ہیں. ایک طرح سے میں نکالنا ہی کہوں گا, کیونکہ جو گورنمنٹ کا یا طریقہ ہوتا ہے ایک ریٹائرمنٹ کا پروٹوکال کے ساتھ پروٹوکال ہوتا ہے کہ آپ کو چارج دینا ہے, پتہ چلا کہ وہ چارج دے دیا گیا. تو وہ تھوڑے دن تو وہ رہے, مگر جس انسرمونیسلی ہمارے چیئرمین کو ریٹائر کیا گیا تو وہ بھی ایک ہسٹری کا. تو کیا ادارے کے جو امپلائیز تھے انہوں نے اس پہ کوئی ہاں اصل میں اعتراض نہ کیا یا احتجاج نہ کیا؟ اگر ہم لوگ لیبر اس میں ہوتے تو شاید کرتے. یا پڑھے لکھوں میں سب سے خاص بات یہی ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتے ہیں, ایسے ویسے ہوتے ہیں تو وہ بھی گورنمنٹ منہ میں تو کہتے رہے مگر ہوا کچھ نہیں. تو میں چھوٹی تو آپ کے چیئرمین پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی گلا کیا کہ میں نے نہیں, ان کو ابراہیم جمال نے کراچی یونیورسٹی میں ایک لیب بنا دی, ایک لیب بنا کر دے دی, پھر وہ وائس چانسلر ہوئے وہاں کے. ابراہیم جمال خاص طور پہ 1953 میں انڈیا سے یہاں آتے ہیں اور نہرو صاحب نے کہا کہ آپ جوائن کیجئے گا. سلیم الظفر صاحب آتے ہیں. سلیم الزماں صدیقی ایکچولی سلیم الزماں صدیقی اسی نام سے پہچانے جاتے ہیں. خلیق الزماں صاحب کے بھائی ہیں یہ, چھوٹے ہیں. اچھا ہاں, دس از واٹ دا پاکستان. تو ایک اور بھی میں بتا دوں آپ کو, پی آئی کے جب ذکر آ گیا تو ہم لوگ, میں ریٹائر ہو کر میرا تھا کہ اپنی ملک میں اچھی جگہ رہوں, تو ایبٹ آباد ہم شفٹ ہو گئے اپنا چھوٹا سا مکان بنا کر. تو اسی زمانے میں اچھا ایبٹ آباد کنیکٹڈ ریلوے سے تو نہیں ہے, پبلک ٹرانسپورٹ ہے, بسیں اور کار, سڑک کا راستہ. تو جناب میرے خیال سے یہ ہوگا 2001 یا 2 کی بات ہے, تو پتہ چلا کہ پی آئی اے نے ایک سروس شروع کی ہے, ہیلی کاپٹر سروس ایبٹ آباد کی. جی تو ہم لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہے, یہاں کتنا تقریباً 3-4 ہزار آدمی روز اسلام آباد اور پشاور سے آتا ہے, یہ ہیلی کاپٹر کیا کرے 14 آدمی کو لے کر. تو پتہ یہ چلا کہ اس وقت کے پولیٹیکل جو ہیڈ تھے ان کو ایک ڈائریکٹر بنانا تھا, اس لیے وہ سروس شروع کی گئی. یعنی ایک پوزیشن, ایک پوسٹ کریٹ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹر سروس ٹو اسلام آباد ایبٹ آباد شروع کی. ہاں, اسلام آباد تو نہیں, پنڈی ٹو ایبٹ آباد شروع کی. بہرحال اس نے چلانا کیا تھا کہ 14 آدمی جتنی دور ہیلی پیڈ جائیں اور آئیں اتنی دیر میں تو اسلام آباد پہنچ جائیں. تو بہرحال تو مگر وہ پتہ چلا کہ وہ ایک ڈائریکٹر بنانا تھا. تو ایسے پتہ نہیں کتنے بنے ہوں گے ڈائریکٹر, اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ڈوب کے رہے, زمین میں آ گیا جاتے یارہ جو تھا ہمارا. تو بہت شکریہ. آپ کراچی میں رہے اور کراچی آپ نے پڑھایا, آپ نے پی سی سر میں کہا واٹ ٹک یو ٹو ایبٹ آباد سیٹل ہونے کے لیے؟ یہ سوال جواب دیتے تھے. جی ایسا ہے کہ اگر بہت پیسے ہوتے تو شاید ہم سوئٹزرلینڈ میں کوئی مکان لے لیتے, مگر ہم کو پتہ تھا کہ میرے ملک میں ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں پہ بڑی اچھی طرح سے رہا جا سکتا, صحت افزا ہیں اور اچھی. سوئٹزرلینڈ ہی ہے ہمارے ملک. تو پھر ہم نے کراچی کی جس طرح آبادی پھیل رہی تھی تو وہ ایک بات تو پکی تھی کہ کراچی میں اور آبادی نہیں رکھنا ہے,
मैं कम से कम मैं ही निकल जाऊँ, एक्सप्लोड हो गई होगा। हाँ, तो मैं ही निकल जाऊँ तो नहीं रहा था। कम से कम 2 तो कम हो जाएंगे कराची से, 2 करोड़ की आबादी से। तो एक तो जहन में ये था। फिर जैसा बताया कि वहाँ के आबहवा वहाँ के, और फिर वो सिटी ऑफ स्कूल एंड कॉलेज कहलाता है पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा स्कूल और कॉलेज वहाँ पर हैं। कराची में नहीं, एबटाबाद एबटाबाद में। और एबटाबाद का जब आपने ये बात कही तो मलाला यूसुफजई जो हैं वो सवात से निकलती हैं और उन्होंने पूरी दुनिया में ये फैला दिया कि पाकिस्तान में तालीम ही औरत के लिए नहीं। मेरे साथ एक टीचर बैठी हुई हैं और आप जब एबटाबाद की बात कर रही हैं तो वही पेशावर का इलाका उस साइड पे KPK का इलाका आ जाता है। आपने कहा कि एबटाबाद में स्कूल एंड कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो ये इतना तजाद क्यों है? मलाला यूसुफजई ने तो पिक्चर ही कोई और पेंट की हुई है इंटरनेशनली। आप बताएं, आप क्विकली बता दीजिए इसके बारे में। असल में एबटाबाद में ज़्यादा स्कूल होने की वजह ये है कि उसके सराउंडिंग एरिया में जो गांव हैं बहुत ज़्यादा, पठान जहाँ रहते हैं वहाँ इतनी एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो जो उस गांव के ज़रा से बेहतर पोजीशन में लोग होते हैं वो अपने बच्चों को फिर वो पढ़ाने के लिए भेजने की इस्तात रखते तो वो भेज देते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है उस इलाके की। तो इसी वजह से एबटाबाद का हर स्कूल जो है उसमें बोर्डिंग हाउस ज़रूर है, ऑलमोस्ट। तो वो इंटीरियर के बच्चे आके पढ़ते हैं। सही। और फिर वहाँ शुरू ही से कुछ एजुकेशन का लेवल, एजुकेशन को बड़ी अहमियत दी गई। तो बड़े अच्छे इदारे जैसे कि बर्न हॉल है, नाम सुना होगा आपने। उमरा के बच्चे वहाँ पे हैं। हाँ, उमरा के बच्चे या जो उस इलाके में रहते हैं। फिर वहाँ बर्न हॉल में वो बच्चे जाते हैं जो अफोर्ड करते हैं। पब्लिक स्कूल जो है एबटाबाद पब्लिक, वो तुम आगाही का जरूर बताना। नहीं, एबटाबाद के स्कूल प्राइवेट जो हैं वो उतने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खुले जैसे लाहौर और कराची के। लाहौर कराची में ऐसा नहीं है। बर्न हॉल में जो है एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी का रहा और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ध्यान दिया गया। कंपेयरिंग टू गवर्नमेंट स्कूल थोड़े से एक्सपेंसिव तो हैं मगर नॉट टू दैट लेवल। सही। दबीर साहब, इश्रत दबीर साहिबा, और जरा से एजुकेशन। हाँ, एक एक्सपीरियंस और हुआ कि वहाँ रहते हुए हमें एक NGO से साबका पड़ा। हम तो जाती एजुकेशन के सर्कल में इंट्रोड्यूस हो गए थे। तो फिर मानसरे से एक साहिबा ढूंढती आई। मैं टीचर्स ट्रेनिंग में भी बहुत रही हूँ। तो कराची पहुँची तो उन्होंने एक NGO थी, उन्होंने स्कूल्स कायम किए थे। कनाडा से गए थे वो लोग और उनकी फंडिंग जो है सीडा वाले शायद कर रहे थे। हाँ, वो यहीं तो उन्होंने मानसेरा में बेस किया और मानसेरा के 6 गांवों में अपने स्कूल। हाँ, और इस तरह से किए कि हर गांव के जो बड़े थे उनसे कहते थे आप सिर्फ ज़मीन दे दें, इमारत हम बनाएंगे, सिलेबस हम देंगे, सारा खर्चा हम उठाएंगे। तो इस तरह 6 स्कूल, तो उसमें मैं इन्वॉल्व रही और वो बड़ी अच्छी तरह से वो 6 गांव के स्कूल। बहुत शुक्रिया इशरतन। यकीनन ये कोई NGO बहुत अच्छी होगी मगर पाकिस्तान में बहुत सारी NGOs जब गई तो वो फौरन एजेंडा लेके गई थी और हम उस फॉरेन एजेंडे के हाथों बड़ी आसानी से बिके भी। जनाब दबीर साहब और इशरत दबीर साहिबा, आप तालीम से वाबस्ता दबीर साहब पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंटल रिसर्च डेवलपमेंट के साथ इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट के साथ मुंसलिक PCSIR के साथ आप दोनों के तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। दे आर लिविंग इन Boston these days. I wish them all the best. Thank you so much for having us. It was a great opportunity for us. Thank you very much.